आरती करनी है जी। बोलिए शिव शंकर महाराज की, बोलिए गणपति महाराज की। पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया ते अग्नि देव ने प्रगट होके चरू का प्रसाद दिता। खीर भी कहने असी चरू कहने तो प्रसाद जो तिना राणियां खवाया गया तो तिना राणियां दे 4 पुत्र पैदा हुए
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਤਰੂਗਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੀਚ ਸਬਾਹੂ ਤਾੜਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਰੀਚ ਸਬਾਹੂ ਜੋ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਰਥ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜਕਾ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾੜਕਾ ਦਾ ਸੀਨ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਕਾ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ मैं खो जाऊंगी कच्चा। ये कौन सा खाना है? बेटा ये निरंतर रास्ते में कायम है। यही कार का नाम राक्षस भी जाती है।
ਮਾਰਤਾ। ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾੜਕਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ? ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ, ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਤਾਂ ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਸ ਬਾਹੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਘੜਾ ਟੱਪਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? और साढ़े वॉलंटियर ਘੜਾ ਟੱਪਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੜਾ ਟੱਪ ਗਏ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਹਰੀ ਅਨੰਤਾ, ਹਰੀ ਕਥਾ ਅਨੰਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਕੇਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ 14 ਸਾਲ ਦਾ? ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸੀ, ਸਭ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤਪਸਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਤੇ 7 ਤੇ 14, 7 ਮੀਨ 7 ਸੱਚਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨਾਲ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਅੱਧਾ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲੀ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੇਕਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਤੇ ਕਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਕਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਵੈਰੀ ਸੁਗਰੀਵ ਪਿਆਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਮੋਹਿ ਮਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੇ, ਇਨਹੇ ਕੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਲੋਕੇ ਜੋਈ, ਤਾਹੀਂ ਬਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੁਰਕੀ ਲਈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਿਓ ਨਾਮ ਇੱਕ। ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ। राव जी, सबको हमारी प्रतिज्ञा सुनाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो 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 सुनो, अब कान लगाकर बलवान सुनो, महाराज जनक का एक फरमान सुनो, नहीं होना मिथ्या कथन है, पूरा करना एक वचन है 20 सभा शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका बंजन, सम्मान बढ़े और सिया मिले, हो राजा के प्रण का पालन। इसीलिए हे सभा में पधारे हुए शूरवीरों, राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनो, उठो और अपना अपना पराक्रम दिखाओ। हे राजाओ उठो, अपना पराक्रम दिखाओ। दूंगा सभी खटका, दुष ढूंढा न पाएगा, दिया जब हाथ का झटका। ये महाराज जरूर धनुष उठाएंगे, इतने ताकतवर ये जरूर धनुष उठाएंगे। क्या हुआ महाराज? क्यों महाराज, क्या हो गया? क्यों क्या हो गया महाराज? एक बार फिर जोर लगाइए। सभी राजकुमार हंसने लगते हैं। ये राजकुमार बड़ी दूर से आए हैं, ये धनुष जरूर उठाएंगे, अपना बलखम जरूर दिखाएंगे और इस धनुष को उठाकर फेंक देंगे। राजा धर्मेंद्र है मेरा नाम, इस का चकना चूर करना मेरे एक का।
ये महाराज का दम बहुत ज्यादा लगता है। ये महाराज जरूर उठाएंगे। लगाया हाथ जब मैंने, मिटी कठिनाइयां इसकी। एक बार कह दूं तो उड़ा दूं धज्जियां इसकी। क्या बात है, ये तो धनुष को अभी उठा डालेंगे। होशियार, खबरदार, लंकापति रावण, दशानन रावण इस सभा में पधार रहे हैं। कर लेंगे अगर ये छोकरे हर एक काम को। कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम पर। लंकापति रावण जी, मैं कहता है जिससे न मंडल, ये युवा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। पूछता है जिसको भूमंडल, भूमंडल, वो प्रतिमा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आकाश का चक्कर भी थम कर रह गया। देखकर मेरी नजर कैलाश भी जम कर रह गया, जम कर रह गया। काल का दी है मेरा, दी है मेरा, काल आ सकता नहीं, रावण के बगैर धनुष को कोई भी उठा सकता। अपनी एक उंगली से कैलाश को उठा दिया था। ये धनुष क्या चीज है, क्या चीज है। रावण, तुम्हारी लंका में आग लग गई है। वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारी लंका में आग लग गई है रावण। लगता है ये भी कोई देवताओं का षड्यंत्र है। सीते, तू भूल है, तुझे विधाता ने बनाया, ये उसकी भूल है, भूल है। सीते, सीते, तुझे मैं अपनी लंका दिखा कर रहूंगा। रावण चले जाओ, तुम्हारी लंका में आग लग गई है। रावण वापस चले जाओ। और कोई महाराज है तो अपना पराक्रम दिखाए। वाणासुर जी, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए और इस धनुष को उठाकर संसार में यश पाइए।
नहीं नहीं, ये धनुष तो मेरा बोधा है, इसकी क्या मिसाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जनक मैनू नहीं डा सकता कोई, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। लज्जा करो, लज्जा करो, ये छाती मार के चलने वालों का रो, लज्जा करो। आज बड़ी प्रकार से प्रकट हो गया, वीटा संसार से विदा हो गई, छतरी कुल की नाच हवा हो गई। मैं पहले से जानता, यदि मैं पहले से ही जानता, स्वयंवर का व्रण कदापि न उठाता। जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता बड़ी सुविधा से उठा के दी थी, इन वीरों का और इन वीरों का इसे हिलाना है, इसीलिए पुत्री को हाथ में ठाने में लाचारी है। मैं हे अभिमानियों, देख रहा हूं देशों विदेशों के राजा महाराजा आए हुए हैं, जिनसे ये हिल भी ना सका। इसमें देव, दानव, गंधर्व और मनुष्य भी बैठा हुआ है, परंतु कोई इसे हिला भी ना सका। प्रक्षोभ हो गई वीरता इस वीर मंडल की, ना इसमें नाम को जल है, गर्ज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने वचन वो होता हुआ। चलो जाओ घर अपने, प्रण बस राजा जनक, बस लाचन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक एक सिद्धांत पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो कि वचन तुम्हारे पीछे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पर छीन कौन सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी पे। जो वीर पुत्र सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। हे राजा जनक, इतनी निठाई वीरों का अपमान करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा न आई, ना कोई सोचा ना विचारा, जो मुंह में आया सो ही कह डाला। क्या तुम रघुकुल की कीर्ति को बिल्कुल ही भूल चुके हो, जो रघुवंशी श्री राम रघुकुल श्रोमणी के होते हुए इतने अनुचित वचन बोल रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ। इसी वंश में महाराजा मनु, इक्ष्वाकु, दीनबाहु जो खड़े खड़े कुबेर के भंडारों से धन इकट्ठा कर लेते थे, उनके पुत्र आज
जो योग साधना में स्वयं श्री ब्रह्मा के समान थे। उन्हीं के पुत्र दशरथ, जिनसे बड़े बड़े देवता युद्ध में सहायता मांगते थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के आगे बड़ी अर्जित वाणी कह डाली है। ये वाक्य हृदय में चुपते हैं कि यह द्रौपदी वीरों से डाली है। जहाँ रघुवंश यदि भ्राता जी की आज्ञा होती तो इस अपमान का बदला मैं अभी चुका देता, रंगभूमि को रणभूमि बना देता। सूर्यवंश के दो दो धनुर्धारी जब इस सभा में विराजमान है, तब कड़वे वचन कहना विष के समान है। धनुष बोधा धनुष कुछ नहीं वीर के आगे, उठा दूं पर्वतों तक को जो है तीर के आगे। विश्वामित्र शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को फूंक डालो। राजा के सन्मुख ऐसे वचन मत निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है इन कायरों के लिए कहा है। देखो उनकी कामनाओं का फूल मुरझा रहा है, उनकी आशाओं पर पानी गिरा जा रहा है। फिर क्रोध आना तो स्वाभाविक ही है। सुनो हे रघुकुल मणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। आप तो जानते हैं भैया राम मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा वारा है, बस अपमान ही ना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप हमारा है। अभिमान त्याग कर आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो इस धनवे की क्या मिसाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, फल को जल का तू, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमा बना के पीस के रख दूं ये पृथ्वी और पहाड़ों को। तोड़ डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल कह उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। यह पुराना किसा पिटा धनुष तिनके साथ इस गिनती में आए। सैकड़ों ऐसे ले दौड़ू, इतना तो भले कुंडली में है। ठीक है भाई। ठीक है लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को बलि प्रकाश से जानता हूँ। इस समय क्रोधित न हो। राजा जनक हमसे बड़े हैं, वह इस समय कठिन निराशा में खड़े हैं। सोचो समझो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिनसे नायक चाप उठा, शायद उनको कहा है, फिर कब उचित है ऐसे बात बात पर मुंह चढ़ाना। शांत होकर बैठो भाई, गुरु जी की आज्ञा का कुशलता से पालन करो। कैसी आज्ञा महाराज। देखो मेरा सभा के शांत वायुमंडल को देखो। निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। बेटा जाओ, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और इन वीरों का सत्ता मिटाओ। देखो ये वही धनुष है जिससे प्रत्येक वीर भय खाता है। अब देखो इसका चिल्ला कैसे कान तक आता है। ऐ दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने
धन्य हो बेटा, तुमने रघुकुल का नाम उज्जवल कर दिया। महाराज यह सब आपका ही आशीर्वाद है। आगे आ जाओ। खड़े लो, सामने करो मुंह, सामने करो, सामने सीधे कर लो मुंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे प्रभु श्री राम देव जी दी बहुत बहुत बधाइयां। सीन नहीं चलूंगा, परशुराम जी आ रहे हैं, अपनी भी थां ते बैठे रहना, सीन बहुत लंबा है, नाल ही सीन चलूगा। धन्य हो हे राम, धन्य हो किसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य हो, धन्य हो राम। हेलो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आगे बढ़ो और ऋषिराज को प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण तुम सदा विजय रहो। आज गली कूचे मेलादारी किस वारे हैं? देशों विदेशों के महाराजा मिथिलापुर में किस लिए पधारे हैं? राज मैंने पुत्री का सुरंग रचाया था, इसीलिए देशों विदेशों को राजा को न्योता देकर बुलाया है। ये सब आपकी ही कृपया है। वो तो ठीक है, किंतु ये शंभूचा किसने तोड़ा है? शिव की पवित्र कमान पर किस पति ने हाथ फेरा है? ओहो, इतना साहस, इतनी निडरता, ये दिखाई इस कदर पाप और अन्याय को सामने मेरे पड़ा खंडित शंभू क्यों? सच बता दे कौन है जो प्रभु मेरा इस दरबार में अन्यथा बना शुरू या राज्य संसार में। महात्मा शांति कीजिए,
शंभू चाप तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? मानता मेरी है वो, कितना है भी मानता। तोड़ा है शंभू चाप जिसने, शत्रु है मेरी। बस मुनिराज बस, ना सुख का संवाद करो, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो हृदय में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो स्वयं को लू में पेला जाता है। अल्लाह ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध और बनाया है। वह सबसे पहले बोल उठे इसलिए उन्हें दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही शहद निचोड़ा है। जाओ कर लो जो करना है, हमने ही यह मत तोड़ा है। सैकड़ों तो डाली तुमकी ऐसी लड़कपन में, जब देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। मैं तुझे सच्चा जानकर बचा जाता हूँ। क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? इधर देख, मैं फौज कर्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलहारी हूँ। मेरा परिचय दुष्टों के होम की देवी है। मैंने कई बार पृथ्वी की शत्रुहीन करके ब्राह्मणों को काट दी है। यमराज का फंदा मेरे परिचय की तरह है। इसी परिचय से मैंने तब तो बहुत ही महान है और अपनी बड़ाई करने में भी परम सुजान है। परंतु हम भी तो कोई मोम की डली नहीं है जो अग्नि देखते ही पिघल जाए। नहीं, ओस की बूंद है जो धूप पड़ते ही डल जाएंगे। ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, चूड़ी के गाव देखे हैं, देवर के बाद देखे हैं। मलाई धमकियों का आपकी हम पर असर होगा, डरेगा वही पर्चे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख बालक, मैं तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, नहीं तो तेरे निर्लज्ज शब्दों पर मैं यही जी जलाने से नहीं जीता बचेगा तू। यही मैं परेशान क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप निसंदेह ऐसे ही हैं, परंतु मैंने भी अब तक आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा था। नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्र में गौर ब्राह्मण को मारना पाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। कायरों को मारने में वीर की कम शान है। दुख ना देगा दीन को, क्षत्रिय की तो संतान है। मूर्ख बालक, ऐसे शब्द कहते हुए तुझे तलक भी लज्जा नहीं। चल मूर्ख, अब सीधा यम के द्वार चल। सभा में बैठने वाले लोगों, अब मुझे दोष ना देना। मैंने कई बार शांति से काम लिया है और अपने क्रोध को ढाल लिया है। लेकिन ये निडर बालक बड़ा ही कठोर और हठकर्मी है। सौंपता बच्चा चेहरे से भरा हुआ चेहरी न है। कितना मैं सीधा चला, इतना ये पैदा हो गया। किस कदर नरमी बड़ी तू ना बखेड़ा। अब नहीं छोड़ूंगा मैं पिता इसे संसार में। लोग की एकदार आई और इसकी मुनिराज बस कीजिए। परिवासों के पाले हुए जब के पल्ले पड़ते हैं तब महाकाल भी हो सन्मुख उससे
किसी की सम्मत लेनी है ऐसे काम में। कर दिखाओ बस अभी, नहीं तो बट्टा लगेगा नाम में। नहीं रखेगा तेजी की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं रखेगा। विश्वामित्र शांत ऋषिराज, शांत। बालक पर क्रोध करना किसी साधु का धर्म नहीं है। इस तरह लड़ना झगड़ना किसी ब्राह्मण का काम नहीं है। विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा ही कठोर और हठकर्मी है, किंतु फिर भी आपके कहने पर मैं इसे क्षमा करता हूँ। देखना देखना महाराज, संभालना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका मंदिर यहीं पर बनवाना। बिन पूजा की सामग्री हम साथ नहीं रखते हैं। आप चाहे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। ओहो, क्या बोले मुनि हैं? नहीं बोलो, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। तेजी की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं रखेगा। क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मोड़ता रखेगा? क्या बरसने वाले, क्या बरसने वाले बादल बरसते हैं? बस स्वामी जी, आपकी देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने को मजबूर। फिर बोला, फिर बोला, फिर अमृत में विष खोला। अरे मूर्ख, मरते मुंह के कुछ काम मिटा तू। ताल के पचे में घुसा। महात्मा शांति कीजिए, यह बालक है, इससे ज्ञान समझकर क्षमा कीजिए। हम तो बालक हैं, उससे से न डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें राह दिखाओ स्वामी। राम राम, तेरा भाई बड़ा ही कठोर और हकराना है। शरीर से तेरा कितनी अंदर से वर्षा वर्षा वर्षा, ये पूरा वर्षा खिलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे। आप तो फूकों से उद्यान पर्वत उड़ा बीत चुकी इसकी धार। ये शस्त्र आपका निर्बल है, इससे अधिक तो आपकी बूढ़ी बोली प्रबल है। महाराज, ऐसा मैंने आपको महाराज, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित होने लगे। यदि यह पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। ठीक है, यदि आपको इसके टूटने का महान दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलवा लीजिए और इस टूटे हुए धनुष को जुड़वा लीजिए। देख, हे राम, देख, तेरा भाई अब भी मुझे सता रहा है। ओहो, अब नहीं रह जाता। चल मूर्ख, अब तो सीधा यम के द्वार चल। दाता, यह क्या हो गया? हृदय में अग्नि बढ़ती है, किंतु वर्षा नहीं उठता। मारने तो दिल कहता है, किंतु हाथ नहीं चलता। हे दाता, यह क्या हो गया? महाराज, आपकी बड़ाई। महाराज, आपकी यह बड़ाई तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। कोई और कहानी है तो वो सुनाइए। यदि कुछ करना धरना है तो कीजिए, नहीं तो कान दबाकर जाइए। ले जा जनाब, यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो उसे मेरी आंखों से दूर रखो, नहीं तो मेरा वर्षा और उसकी दिल। नाथ, नाथ, इतना क्रोध ना कीजिए। ऋषि का क्रोध करना ठीक नहीं। ये अज्ञान बालक है,
इसे अज्ञान समझकर क्षमा कर दीजिए। हाँ समझा, इतना यह करूर है, तू भी उतना अपराधी है। लगता है तू शकुचा तोड़कर तुझे भी अभिमान हो गया है। ओहो, मुनि का स्वभाव तो उस गर्मी होता जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी ना डाला गया तो इसे शांत करना बहुत कठिन हो जाएगा। है मेरी अधीनता से यह सारे हौसले आप चढ़ते ही गए, हम जिस कदर नीचे गए। समझा, दुश्मन तोड़कर तुझे भी बहुत अभिमान हो गया है। भला यह तो बता, तू कब से बलवान हो गया है? महाराज, मैं एक बार कह चुका हूँ, हमें अज्ञान समझकर क्षमा कीजिए। अच्छा, अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो मेरे इस दुश्मन पर तू चिल्ला कर दिखा। लाइए महाराज। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। धन्य हो हे दशरथ पुत्र, तुम धन्य हो। आज मेरे मन का सारा अहंकार दूर हो गया। निस्संदेह ब्रह्म अहंकार हो चुका है। आपसे मिलकर मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। 200 रुपया सरपंच साहब, असि तो सम्मान करना, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ सर। 200 रुपया साढ़े नरूंगा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और भाई प्रवीण कुमार जी समाज सेवी, उन्होंने भी नाम आया। जी शुक्रगुजार है जी। 2 सीने ने बाकी है, दिखा के जाना जी। जिन्हें जाना आराम से चले जाओ, जिन्हें बैठना बैठे रहो प्लीज। सीन आ रहा है, उन्हें जी सम्मानित करांगे आज के मौके।
मार दो जरा खींच के भी। अरे भाई, हमारे राम कल राजा बनेंगे। हाँ हाँ बहुत खुशी की बात है। हाँ। अरे भाई, ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? नगर को क्यों सजाया जा रहा है? अरे मंदिरा, तू नहीं जानती, कल हमारा राम राजा बनने जा रहा है। क्या कहा? राम राजा बनने जा रहा है? हाँ मंदिरा, हाँ। क्या तुम सच कहते हो? हाँ, क्या तुम सठिया गई हो? तुम्हें नहीं पता, कल राम हमारा राजा बनने जा रहा है। क्यों भैया? तो ये बात है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। लाई दे। आनंद के दिन बड़ी शीघ्रता से बीत जाते हैं, अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह हुए को आज 1 वर्ष बीत गया। ऐसा मालूम होता है मानो कल की ही बात हो। आओ आओ मासी, मासी, सच बता, राज्य से क्या क्या समाचार लाई? आज तो तूने बड़ी देर लगा दी। आज तो तू बड़ी देरी से आ रही है, अवश्य कुछ न कुछ नया लेकर आई होगी। आज तो तेरा मन। अरे मथुरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे आज तू बोलते क्यों नहीं? राज दरबार में तो शांति है, मेरे राम लक्ष्मण तो कुशल से हैं। अरे मंत्रा, महाराज तो कुशल से है ना? अरे आज तू मौन क्यों है? मौन न हूँ तो और क्या हूँ रानी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुम्हें नहीं पता, कल राम को राजा बनाया जा रहा है, लुट रहा है घर तेरा, और तू हुई है बेखबर। क्यों बैठी है आंखों पर पट्टी बांध कर? राजा, मथुरा, क्या तू सच कहती है? कल वास्तव में मेरा राम राजा बनेगा, वह सिंहासन पर बैठेगा? बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का समागम है मथुरा। तुझे भरपूर पुरस्कार मिले। याद रख, तुझे अनेकों पुरस्कार मिलने वाले हैं। खुले हैं। खुले हैं भाग्य हम सबके, कड़ी यह शुभ जारी है। तुम्हें कहना
उनके लिए है तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। भक्त को नौलहाल भेजकर राम को संघर्षण पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्यों बैठी है रानी आंखों दीवान कर? अरे निर्बक, तू ये क्या कहने लगी? इस आनंद के अवसर पर तुम्हें शुभ मंगल गाना चाहिए। जब तक तुम्हें क्यों ना, जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की पहचान नहीं तभी तक ऐसी बातें करेगी। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मुझे इसमें गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुप कर जा पापिन। यदि घर में पेट डालने वाली बातें करेगी तो तेरी जीवा तालुए से निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जिंदा अग्नि में जलवा दूंगी। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही नष्ट हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की बात करती हूँ और तू मुझे पापन बताती है। जाने दो, मुझे क्या लेना, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे मंत्रा, आज तो तू अनोखी बातें कर रही है। मेरी समझ में तुम्हारा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आ रहा। आ जाएगा, आ जाएगा। अब तुम रानी से दासी बन जाओगी, तेरी समझ में सब आ जाएगा। जब तुम्हें महलों में झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, तब तेरी समझ में सब आ जाएगा। अरे मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक पढ़ने लगी। राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। अरे सच बता, क्या बुद्धि को बिल्कुल ही बेच डाला है? श्री राम तो तुम्हारा प्यारा है, कुशल लाडला बेटा है, वो ही तुमको गाली देगा जो माता माता कहता है। हाँ मंत्रा, हाँ मंत्रा, तेरी यह बात तो कुछ मन को लगती है। यही तो मेरा यही तो मेरा कहने का मतलब है रानी। जो राम की दशा राजा मिलने से पहले है, बाद में कदापि नहीं रहेगी। तुम सम्मान के बदले अपमान खाओगी। किंतु मंत्रा, इसमें महाराज का क्या धोखा है? धोखा नहीं तो रानी, बहुत बोली है तू। धोखा नहीं तो और क्या है कि अनेक उचित काम के लिए कल का दिन ही क्यों चुना गया और भरत को नौनहार भेजकर राम को सिंहासन पर कल ही क्यों बिठाया जा रहा है? हाँ, यह भी ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान, बिल्कुल आसान। कैसे मंत्रा, कैसे? तू जो कहेगी मैं वह सब करूंगी। तो सुन, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से शंबासुर से युद्ध लड़ने गए थे तो वहां रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा दिया था और राजा ने कहा था कि मैं तुम्हें 2
याद रखना राजा